everything, but finally he needs assent from, और यहाँ पे assent from, yes, तो लिख लेंगे. I said that Legislative Council was empowered to make legislation over whole India, whole British India, but it will be passed after assent of Governor General. क्या गवर्नर जनरल इंडिया रोक सकता है इस पावर को? अरे रोक सकता है दैट बिल को और नॉट? इसका मतलब हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी? And then Governor General of India can withhold the bill. Governor General of India can withhold. अब इस लॉ को कहां भेजा जाएगा? When the law has been made, then it will be go to the what? SOS. और SOS बोलेगा कि नहीं. If SOS said that no, then it should be no should be confirmed by whom? British Crown. Yes or not? Yes or not? तो लिखेंगे all legislation made by Governor General should get assent from SOS. If not, then it is confirmed through British Crown. Yes. So Executive Council में how many members? 5 members. And what is the 5th member? Finance. And in the Legislative Council how many members? 1861. 6 से कितने हो गए? 6 to 12. But more than half it will be what? Non-official. And I said that उसके बाद हम लोगों ने देखा yes, Governor General के पास कैसा power है? He can make the what? Provinces, and he can appoint and what? Lieutenant Governor. Yes or not? And thereafter he can, I said that also we have been able to see he can promulgate ordinances at the time of emergency. And emergency will sustain for how many months? 6 months. It is clear. And then so much power. If he is making, if the Legislative Council of India means Governor General Kantar at central level, if he is making law, it will get assent from Governor General of India. Yes or not? Then it can become law. And thereafter, it is the job of Governor General of India to give it to whom? SOS. And then now SOS say he has to take assent. And if he has given assent, okay. If he has not given assent, then it will be go to the British Crown. Then why you would not? That should be confirmed by. This is in the 1861. लेकिन आपको यही दिखा 6 से 12 more than half presentation of non-officials. Is it clear? Now the coming of, I said that what? 1892. इससे पहले हम लोग देखेंगे मेरे साथ बोलेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी. क्या बोला मैंने? लैंड होल्डर. ये टॉपिक जो है आपका सम ऑफ द लिखेंगे सम ऑफ द इंडियन एसोसिएशन
some of the Indian association before 1885 Indian National Congress. Some of the Indian association before 1885 Indian National Congress. तो हमें सबसे बड़ा कौन सा एसोसिएशन नज़र आता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, आई सेड दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर. सो हमने फर्स्ट बोला लैंड होल्डर सोसाइटी. क्या बोला हमने? पहले सुनेंगे, याद करेंगे, विदाउट, डू नॉट गो. आई सेड दैट लैंड होल्डर एसोसिएशन ऑफ, I said that landlords of बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. यही तो रीजन था जहाँ पे बंगाल का पावर है. पहला क्या बोला हमने? लैंड होल्डर सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ बंगाल, बिहार एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ, एसोसिएशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. उसके बाद आई सेड दैट पहला हमने क्या देखा था? लैंड होल्डर सोसाइटी plus association of, what I said, that landlords of Bengal, बिहार, उड़ीसा. और ये जो बॉडी आई 1837 में आई. कब आई? अब कुछ यूथ्स आए, यूथ they want to do, इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था. ये जो भी थे, what is I said that they come with what? क्योंकि they are, I said that what? Landlords. They were what? And now there is a coming of, what I said that in Bengal, British India Association. कौन सा नाम लिया मैंने अगला? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. याद कर लेंगे, वहां पे थोड़ा सा भी वर्ड इधर उधर हुआ तो गए काम से. बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इट हैज बीन ब्रॉट इन 1843 with the help of, I said that, young Indians. Who is there? Young Indians. It is clear? And young Indian का मतलब क्या है? For the, what I said that, welfare and grievances of the society. Yes or no? Can you remember? So which are the two I said? Land holder society, and another one I said that, yes, association of the landlords of Bengal, Bihar, Odisha in 1837. लेकिन इनका self interest, so it was not beneficial for the, I said that, Indian people. There is a Bengal British India Association. अब ये लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दोनों मर्ज हो गए. LHS प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन मर्ज इन 1851. कब मर्ज हो गए? They have been merged in 1851. Land Holder Society and Bengal British India Association. They have been merged in 1851 and they have given, I said that, ये बंगाल हटा दो, LHS हटा दो, क्या बच गया? What left? बंगाल हटा दो and LHS removed. What become? British Indian Association. In which year? 1851. It is clear to you? तो बंगाल में एक हमने क्या देख लिया? Group level of association, where the people are talking about the welfare and then what I said that, grievances of the people. जब ये हुआ, इसी समय दो रीजन इंडिया के थे. बंगाल में तो हुआ, उसके बाद मद्रास एंड बॉम्बे, दो जगह भी बनाया गया. विच आर द टू एसोसिएशन हैज बीन फॉर्म्ड इन 1852? बॉम्बे एसोसिएशन and another one I said that, yes, tell me. Madras Association, in the same line with British Indian Association. Yes or not? And what is the purpose of this association? Welfare
and grievances of the people of India. Which are the name I said that? Is it clear? I said फटाफट क्या क्या मैंने बोला था. पहला याद करना जरूरी है, ये सारी चीजें जो हैं लैंड होल्डर्स और लैंड लॉर्ड्स, दो याद रहेंगे आपको स्टार्टिंग में, लैंड होल्डर्स एंड लैंड लॉर्ड्स. इज इट क्लियर? और इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है 1837 के बाद 6 years गैप एंड देन कमिंग ऑफ 43. और यहाँ पर बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया. हु? यूथ, young people, yes or not, for the serving the purpose of society, welfare and all. And then LHS, Landholder Society plus who? Bengal British India Association 1851 में become British Indian Association. तो जब बंगाल में बनाया गया तो next year it has been also, I said, under the influence the Bombay and as well as Madras Association. It is clear? अब आते हैं हम लोग क्या, सर सैयद अहमद खान. Who? Sir Syed Ahmad Khan. And in the 1861 to 66 he worked in Better. Shall I remove this 3? And this is 4 and 5. Is it clear? And there is in a scientific society. What that Sir Syed Ahmad Khan did? Scientific society. Sir Syed अहमद खान, और ये फेमस ही है इसके लिए. इसी के बाद तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज बीन मेड बाय हिम, साइंटिफिक सोसाइटी. और कहाँ पे? आई सेड दैट थ्रू आउट इंडिया. यस और नॉट? इन विच 1861 to 66. हु? सर सैयद अहमद खान. यस सर. एंड यू नो दैट एक थे प्रार्थना समाज. यस और नॉट? प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग. यस और नॉट? देयर इज एन MG रानाडे एंड देन भंडारकर. दीज आर द 3 portion. और इनिशियल पोर्शन वाज प्रार्थना कैसे करना चाहिए? आत्मा से. आत्माराम पांडुरंग. लेकिन उसके बाद द फेमस पोर्शन कैम, द 2 portion, भंडारकर एंड हु? ये आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वगैरह में आप पढ़ते होंगे. एंड आई सेड दैट वी हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस. कौन? MG भंडारकर, सॉरी MG रानाडे. कौन सी बात करने जा रहे हैं हम? MG रानाडे. सर सैयद अहमद खान के बाद लेटर ऑन हु पर्सन, विच पर्सन कैम हु ट्राई टू डू समथिंग फॉर द, आई सेड, फॉर द कंसर्न ऑफ इंडियन पीपल. आई सेड दैट MG रानाडे. मेरे साथ बोलेंगे. क्या बोला मैंने? पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. तो एक तो पूना में किया इन्होंने, उसके बाद कहाँ चले गए? मद्रास में महाजन. एंड देयर आफ्टर आई सेड दैट व्हाट? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. विच आर द 3? रानाडे, पूना. यस, पूना. पहला यह कहां पे था? पूना. मद्रास इन 1871, इन 1881 here it is, and 1885 में, yes tell me, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. इज इट क्लियर? सो क्या बोला मैंने? पूना सार्वजनिक सभा. इन विच ईयर? पूना. और ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, मेकिंग द थिंग्स टू रीच टू द, व्हाट आई सेड, दैट ब्रिटिश इंडिया. पूना सार्वजनिक सभा. अनदर वन आई सेड दैट, यस टेल मी. मद्रास, मद्रास महाजन. M मद्रास, M महाजन, महाजन सभा 1881. Again the grievances of the people to look after. I said one of the greatest socio-religious reformer, better to say social reformer. Another I said that Bombay Presidency Association in 1885.
ध्यान देखिएगा, इस समय यहां पर रामोशी रिवोल्ट भी चल रहा था। कौन सा रिवोल्ट चल रहा था? इन द सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो रत्नागिरी सतारा रीजन दैट यू आर वाचिंग, इट इज अ रामोशी रिवोल्ट. And Ramoshi revolt is, I said that it is those farmers who have been, I said that, who have been earlier in the Maratha army, earlier in the, and thereafter he has been, I said that, what? Removed. Jaise Maratha army declined, then all of them become unemployed. And when they become unemployed, they have to come onto the what? Agriculture. And when they started depending on the agriculture, और वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड टैक्स हैज बीन इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन टू देम? दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, यस और नॉट? और जैसे रिवोल्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रामोशी. एंड इट इज डन बाय बलवंत फटके. एंड देन आई सेड दैट व्हाट? रामोशी चित्तूर सिंह. तो चित्तूर सिंह कौन? सी. तो आई सेड दैट हमने क्या बोला? तो इस रीजन में रिवोल्ट चल रहा था, और इस रीजन में ध्यान से देखिएगा, बाद में आपको काम आएगा, क्योंकि इसी चीज को देखने के बाद ही 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया. मेरी बात समझ रहे हैं? किसकी वोट लग रही थी? ब्रिटिश इंडिया की. किसकी वोट लग रही थी? बोल रहा था कि इट इज गोइंग टू बी, और इस समय मैं बोरिया बिस्तर बांध कर ही जाऊंगा. तो उन्होंने जल्दी जल्दी बोला, ए ओ ह्यूम कम हियर. हु कॉल्ड अपॉन? डफरिन. बोला कि यू कम. आप लोगों को पहले ही क्लासेस में सारे गवर्नर जनरल, आई मेक इट रिमेंबर, डफरिन के पहले रिपन थे. सो डफरिन ने यहाँ पर फिर बुलाया, क्योंकि ये सिचुएशन वाज नॉट इन द हैंड ऑफ व्हाट आई सेड दैट ब्रिटेन. यस और नॉट? तो देयरफॉर बोला कि चलो हम लोग क्या बनाते हैं? सिचुएशन को हल्का करते हैं. यस और नॉट? और इसीलिए बोला गया था, इसमें बोला गया था इन 1858 में, क्या बोला गया था? देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ Indian people, and if there would have been any representation of Indian people, so 1857 revolt would not have happened. और इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, तो रिवोल्ट कोई नहीं होगा. यस और नॉट? क्योंकि हम थोड़ा सा, हमारे यहाँ कोई मदर फादर फिगर कोई हो जाता है तो वी स्टार्टेड बिलीविंग ऑन देम. यस और नॉट? तो वी डिक्रीज आवर पावर, वी बिलीविंग ऑन देम मोर. सो रिवोल्ट को दबाने का यही था. इसीलिए 1885 AOM इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ्टी वॉल. क्या बोला गया? और सेफ्टी वॉल का मेजर कंसर्न यही था. ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है आपको? टेल मी. 1871 में कौन सा? पुणे सार्वजनिक सभा. अनदर आई सेड 1881 में विच वन? मद्रास महाजन सभा. एंड अनदर इज आई सेड 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. और ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक जर्नल भी था, एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल प्रॉब्लम. जर्नल समझ रहे हैं? बाय द व्हाट आई सेड, द पैम्पलेटिंग, एंड आई सेड दैट सम काइंड ऑफ मैगजीन्स. तो अपने आप में एक हैवोक क्रिएट कर रखा था. एंड अनदर वन इट इज आई सेड दैट हु? रामोशी रिवोल्ट. दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा रोल प्ले किया टू कमिंग ऑफ व्हाट आई सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब एक और बहुत बड़ा बंदा आएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. विल कम. Shall I remove? Shall I remove this? क्या क्या बोला मैंने? फटाफट. I said landholder society, and then I said that there is an association of landlords of Bengal, Bihar and Odisha, 1837. Then I said that Bengal British India Association, 1843. दोनों ऐड इन 1851. बंगाल हटा दो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. एंड दिस इज डन बाय द हुम? यूथ. यस आना. thereafter it is moving ahead. In the 1861 to 66, who comes? Sir Syed Ahmed Khan, Scientific Society, and everywhere he has improved this. Another association come in the name from the what is it, that M.G. Ranade. And what are the? Pune Sarvajanik Sabha, Madras Mahajan Sabha, and then which one? Bombay Presidency Association. Yes sir. 1871, 1881 and 1885. और 1885 is the period of Indian National Congress formation. ध्यान रखिएगा, जब ये सब चीज़ हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में ये सब जो बता रहा हूँ ये गायब रहता है आपके हिस्ट्री में.